তাহলে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সের কোশ্চেন, ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সের কোশ্চেন, আদার ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন। তুমি তোমার যদি বই থাকে তুমি খুলে দেখতে পারো, এই বই এই কোশ্চেনটা রয়েছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সের, পাশে রাখতে পারো। ফ্রম দ্য ফলোইং পার্টিকুলার সাবমিটেড বাই মিস্টার রঞ্জন, compute his taxable income. স্যার আদার সোর্সেস তো স্টার্টই হয়নি। আদার সোর্স স্টার্ট হয়নি না, হয়েছে। আমি ক্যাপিটাল গেইন করানোর, ক্যাপিটাল গেইনের যে লাস্ট লাস্ট কি করেছিলাম, লাস্ট তোমার লাস্ট যে ক্লাসটা হচ্ছিল ওখানে আমি কিছু কোশ্চেন করিয়েছি, 3টা কোশ্চেন করিয়েছি। তার আগে আদার সোর্স চালু করে দিয়েছিলাম, মানে ওই 3টে কোশ্চেনের আগে আমি আদার সোর্স চালু করে দিয়েছিলাম। তো যখন তোমার আহ, কিরণ বললো তখন আমি আবার ঘুরে ক্যাপিটাল গেইন করালাম। ক্যাপিটাল গেইনের ওই 3টে অঙ্ক বাকি ছিল, ঘুরে করালাম। তুমি যদি না দেখে থাকো তাহলে দেখে নেবে, এর লাস্ট ক্লাসের আগের ভিডিও দেখে নেবে, দেওয়া রয়েছে। ঠিক আছে, লাস্ট ক্লাসে করিয়েছি ক্যাপিটাল গেইনের 3টে প্রবলেম। তার আগে আদার সোর্স হচ্ছিল, তার আগেরটাই দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে আমি এইখান পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছি। এই যে এইখান পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছি 15, আমার মনে আছে ফ্যামিলি পেনশনের ডিডাকশন কতটা হবে, 15,000, 33.33%, এটা আমি বলেছিলাম। এখান পর্যন্ত হয়েছে, তুমি দেখে নেবে ভিডিওতে, এখান পর্যন্ত থাকবেই। ঠিক আছে, আমি ওর পরে স্টার্ট করছি। আচ্ছা, আমি তোমাদের যা ডাউনলোড করে ভিডিও রাখার বা দেখার দেখে নেবে, কারণ আমার কাছে কোনো কপি নেই। আমি ডিলিট করে দিই, 1-2 দিন থাকে তারপরে ডিলিট করে দিই, কারণ প্রত্যেক দিন তো ক্লাস হচ্ছে না, তোমার ভিডিও জমে জমে তো অনেক হয়ে যাবে। প্রত্যেক দিন 2-1 দিন থাকলো তারপরে ডিলিট করে দিই। তোমরা ডাউনলোড করে নেবে, তাকি পরে যদি সেটা আর না পাওয়া যায়, অনেক সময় দেখে না যে অনেক দিন ফাইল যদি থাকে সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না, পরে ডাউনলোড করলে ডাউনলোড হয় না। ঠিক আছে, আহ, তো আচ্ছা, তাহলে ফ্রম দ্য ফলোইং পার্টিকুলার সাবমিটেড বাই মিস্টার রঞ্জন, compute his taxable income. ট্যাক্সেবল ইনকাম কম্পিউট করতে হবে মিস্টার রঞ্জনের। ঠিক আছে, তার ইনকাম কোথা থেকে আছে দেখে নাও। তার ইনকাম ডাইরেক্টর ফিজ থেকে রয়েছে, মানে সে কোনো কোম্পানির ডাইরেক্টর, এখানে কোন কোম্পানির ডাইরেক্টর, ওয়াই লিমিটেড এর ডাইরেক্টর। পেনটা এত মোটা লেখা আছে। ওয়াই লিমিটেড এর ডাইরেক্টর। এগ্রিকালচারাল ইনকাম কিছু রয়েছে, আহ কোথাকার ল্যান্ড থেকে, ল্যান্ড সিচুয়েটেড ইন ইন্ডিয়া, ল্যান্ডটা ইন্ডিয়াতেই রয়েছে। ঠিক আছে, ল্যান্ডটা ইন্ডিয়াতেই রয়েছে। এগ্রিকালচারাল ইনকাম ফ্রম নেপাল, নেপালেও কিছু ল্যান্ড রয়েছে, সেখান থেকেও এগ্রিকালচারাল ইনকাম হচ্ছে। তাহলে যে এগ্রিকালচারাল ইনকাম, যে এগ্রিকালচারাল ইনকাম তোমার ইন্ডিয়াতে হচ্ছে, সেটার উপরে কিন্তু ট্যাক্স, সেটার উপরে কিন্তু ট্যাক্স লাগবে না।
তাহলে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ফ্রম ইন্ডিয়া exempt, agricultural income from land in India exempt হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু নেপাল, নেপাল তো ভারতে নয়, নেপাল একটা দেশ। নেপাল, নেপালের যে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। মিস্টার রঞ্জন কিছু বলেনি মানে কি ধরে নিতে হবে? রেসিডেন্ট ধরে নিতে হবে, ধরে নিতে হবে রেসিডেন্ট। আর রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যে গ্লোবাল ইনকাম ট্যাক্সেবল, রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে বলেছিলাম গ্লোবাল ইনকাম ট্যাক্সেবল, মানে যে কোনো দেশে ইনকামও করুক না কেন পুরো ট্যাক্স লাগবে, সব ইনকামের উপরে ট্যাক্স লাগবে। তাহলে এটা হবে ট্যাক্সেবল, মানে 15,000 টাকা ট্যাক্সেবল, 10,000 টাকা ছাড় এক্সাম্পট। আর ডাইরেক্টর ফিজ, ডাইরেক্টর ফিজ ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে। হুম, হুম। তারপর এফডিআর মানে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে ইনকাম রয়েছে, ফিক্সড ডিপোজিটের ইনকাম কি হবে? 12,000 টাকা গ্রস, টোটাল 12,000 টাকা ইন্টারেস্ট। গ্রস কেন লেখা আছে বলে তো? টিডিএস কাটা থাকে না, টিডিএস কাটা হতে পারে, সেই জন্য বলে দিচ্ছে এটা টিডিএস কাটা নয়, মানে টিডিএস বাদ দিয়ে নয়, টিডিএস বাদ দিয়ে নয়, মানে টোটালটাই দেওয়া রয়েছে 12,000। তাহলে কি হবে? পুরোটাই ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে, কোনো ছাড় নেই। আচ্ছা, সেভিংস, পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্টের 600 টাকা, পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্টে 600 টাকা। তাহলে পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্টস এর যে টাকা সেটা কি হয়ে যাবে? ট্যাক্সেবল না ছাড়? আচ্ছা, এখানে পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকের ইন্টারেস্টের কথা বলছে, ইন্টারেস্ট। এখানে উপরে হেডিং কি লেখা রয়েছে দেখো, ইন্টারেস্ট লেখা রয়েছে না? এফডির ইন্টারেস্ট, সেভিংস ব্যাংকের ইন্টারেস্ট। এফডির ইন্টারেস্ট তো ট্যাক্সেবল, কোনো ছাড় নেই। সেভিংস ব্যাংকের ইন্টারেস্ট প্রথমে ট্যাক্সেবল হবে, পরে ছাড় হবে। প্রথমে ট্যাক্সেবল হবে, পরে ছাড় হবে। প্রথমে ট্যাক্সেবল হবে বলতে যখন তুমি ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স ক্যালকুলেট করবে, তখন সেভিংস ব্যাংকের যে ইন্টারেস্ট সেটা অ্যাড হয়ে যাবে ইনকামে, মানে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স ধরা হবে, মানে ট্যাক্সেবল হবে প্রথমে। তারপরে 80 টিটিএ বলে সেকশন রয়েছে, 80 সি, 80 ডি, 80 সিসিডি, এভাবে কিছু সেকশন রয়েছে। তো 80 টিটিএ তে, 80 টিটিএ তে সেভিংস ইন্টারেস্টটা ছাড় হবে, পরে ছাড় হবে। তার মানে প্রথমে অ্যাড হবে তারপরে ছাড় হবে সেভিংস ইন্টারেস্ট। এফডির ইন্টারেস্ট ট্যাক্সেবল, কোনো ছাড় নেই। সিনিয়র সিটিজেন হলে ছাড় ছিল, কিন্তু এফডির ইন্টারেস্ট নর্মাল পার্সন, এখানে তো বলেছে রঞ্জন, রঞ্জনের কি এজ বলেছে? বলেন, রঞ্জনের এজ বলেনি, তাহলে এফডির ইন্টারেস্ট ছাড় নেই, শুধু সেভিংস এর ইন্টারেস্টটা ছাড়। তো প্রথমে ট্যাক্সেবল হবে, পরে ছাড় হবে, মানে আদার সোর্স যখন ক্যালকুলেট হবে তখন অ্যাড হয়ে যাবে, পরে 80 টি তে গিয়ে, 80 টিটিএ তে গিয়ে, 80 টিটিএ তে গিয়ে ছাড় হবে। এরপরে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ এর উপরে ইন্টারেস্ট ছাড় নেই, ট্যাক্সেবল। এটা প্রথমে ট্যাক্সেবল পরে ছাড় বললাম। তো প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ইন্টারেস্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ইন্টারেস্ট ছাড় হয়ে যাবে, ছাড় হয়ে যাবে, ছাড় হয়ে যাবে। এনএসসি, এনএসসির ইন্টারেস্ট, ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট, ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড যে কেউ করতে পারে, তুমিও করতে পারো। পাবলিক, পাবলিক লেখা রয়েছে। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড তো লেখা নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ড অনেক রকমের হয়, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড, ঠিক আছে, যে কেউ করতে পারে, ওর ইন্টারেস্ট ছাড় আছে। ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট, ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট তুমি যদি পোস্ট অফিসে যাও
তো বলবে কি ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট করব, ইনভেস্ট করব, ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেটে ইনভেস্ট করব, তাহলে পোস্ট অফিস থেকে পেয়ে যাবে। তার উপরে যে ইন্টারেস্ট, সেটা ট্যাক্সেবল আছে, ছাড় নেই, ছাড় নেই। ডিভিডেন্ড ফ্রম অজন্তা লিমিটেড, ডিভিডেন্ড পেয়েছো ইন্ডিয়ান কোম্পানি, ইন্ডিয়ান কোম্পানির থেকে ডিভিডেন্ড ট্যাক্সেবল না, আর এক্সাম। লটারি, লটারি থেকে, লটারি থেকে ছাড় নয়, ট্যাক্সেবল। গ্রস কেন লেখা রয়েছে বলো তো? গ্রস যেখানেই লেখা রয়েছে বুঝতে হবে যে টিডিএস এর ব্যাপার একটা রয়েছে। টিডিএস কেটে বলা নাই, মানে টোটালটা বলা রয়েছে। লটারি প্রাইস 40,000, এটা টিডিএস কেটে বলা নেই, মানে টোটালটাই বলা রয়েছে। টোটাল লটারি যেটা, সেটা হচ্ছে 40,000, টিডিএস কাটলে তো কমে যাবে। টোটালটাই বলা রয়েছে, টোটালটাই ট্যাক্সেবল হবে। রেন্ট ফ্রম সাবলেটিং, রেন্ট ফ্রম সাবলেটিং অফ ফ্ল্যাট, সাবলেটিং, সাবলেটিং মানে তুমি ফ্ল্যাট নিয়েছো একজনের কাছ থেকে, তারপরে তুমি আবার সেই ফ্ল্যাটটাকে অন্যকে দিয়েছো, তো সেটা সাবলেটিং, এটা আদার সোর্সে এসে যাবে। কত পেয়েছো? 12,000, ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে, ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে। কিন্তু যার কাছ থেকে তুমি ভাড়ায় নিয়েছো তাকে দিচ্ছ কত? 6,000। ঠিক আছে, মালিককে দিচ্ছ 6,000, আবার তুমি যার কাছ থেকে, যাকে ভাড়ায় দিয়েছো, তুমি যাকে, তার কাছে নিচ্ছ 12,000, তাহলে তোমার লাভ কত? 6,000। তাহলে তোমার নেট লাভ হচ্ছে, নেট লাভ হচ্ছে 12,000, তো তুমি পাচ্ছ, 6,000 তোমাকে আবার দিয়ে দিতে হচ্ছে মালিক, তাহলে তোমার লাভ হচ্ছে 6,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে কি বলেছে? সোইলেস পেড 600 টাকা ফর রিয়েলাইজিং রেন্ট। কৈলাসের খরচা হয়েছে 600 টাকা রেন্ট রিয়েলাইজ করার জন্য। আচ্ছা, এখানে শৈলেশ কেন? শৈলেশ তো হবে না, নাম উল্টা চলে আসছে। উপরে কে ছিল? রঞ্জন। শৈলেশ কেন আসবে? এটা তাহলে কি হবে? ভুল করেছে, এটা রঞ্জনই হবে। ঠিক আছে, রঞ্জনের খরচা হয়েছে কত? রেন্টটা কালেক্ট করতে 12,000 টাকার রেন্ট কালেক্ট করতে 600 টাকা খরচা। 12,000 টাকা রেন্ট কালেক্ট করতে 600 টাকা খরচা আছে, তাহলে, তাহলে তার নেট লাভ কত হলো? 600 আবার বাদ দাও, নেট লাভ কত হলো? 5400। ঠিক আছে, he also spent 10,000 for purchase of lottery. ও, লটারিতে খরচা হয়েছে, লটারির টিকিট কিনেছে না, লটারিতে খরচা হয়েছে 10,000 টাকা, আর লটারি থেকে পেয়েছে কত? 40,000, তাহলে নেট লাভ কত? 30,000। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের হিসাবে লটারি থেকে যে খরচা, মানে লটারির জন্য যা খরচা হবে সেইটা বাদ যাবে না। কি বললাম? যে ইনকাম ট্যাক্সের হিসাবে, কি হলো? কে দাগ করছো? কে দাগ করছো? কে দাগ করছো? ডিলিট করো। কি হলো? সুব্রত জানার মাইক বন্ধ কেন? আচ্ছা। হুম, হুম। কে হলো? কে দাগ করছে?
সুব্রত জানাই হবে ছেলেটা মনে হয় কি করছে। আচ্ছা তাহলে দেখো, তাহলে লটারি লটারি পেয়েছো 40,000, মানে রঞ্জন পেয়েছে 40,000-এর লটারি। লটারি পেয়েছে 40,000, কিন্তু খরচা হয়েছে 10,000। তাহলে নেট ইনকাম তো 30,000 বলবে তুমি? না, হবে না। তোমাকে 40,000-এর উপরেই ট্যাক্স দিতে হবে, কারণ লটারি থেকে কোনো এক্সপেন্স বাদ যাবে না। লটারি থেকে কোনো এক্সপেন্স বাদ যাবে না। ইউ ক্যান নট ডিডাক্ট এনি এক্সপেন্স ফ্রম লটারি। ইউ ক্যান নট ডিডাক্ট এনি এক্সপেন্স ফ্রম লটারি। ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে দেখো সলিউশন, সলিউশন দেখো কি হলো। সুব্রত, এই ছেলেটা তো মাইক, এক মিনিট আমি কল করে, সুব্রত হাজরা। সুব্রত, আচ্ছা সুব্রত দাগ করছো কেন? সুব্রত এগুলো দাগ করছো কেন? हाँ सर। হুম? अच्छा देखो, डायरेक्टर फीस मैंने बोले थे कि डायरेक्टर फीस टैक्सेबल, 3,000 fully taxable in the hands of Mr. Ranjan. Agricultural income taxable from Nepal, taxable. एग्रीकल्चरल इनकम, जो इनकम इंडिया से बाहर आ रहा है वो टैक्सेबल है। एग्रीकल्चरल इनकम नेपाल से आ रहा है, टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एफडी वो तो टैक्सेबल है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट ये अभी एग्जाम कर दिया, लेकिन ये पहले ऐड होगा आधार सोर्स में, उसके बाद एग्जाम्शन होगा, डिडक्शन मिलेगा 80 TTA, 80 TTA में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल, पीपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो एग्जाम, एनएससी के ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम अजंता लिमिटेड, इंडियन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम। लॉटरी, लॉटरी कितना मिला था? 40,000, 40,000 इंटायर अमाउंट टैक्सेबल, उसमें से कुछ भी नहीं डिडक्शन मिलेगा। वो जो लॉटरी के लिए जो तुम टिकट खरीद रहे थे, टिकट का जो प्राइस था वो डिडक्शन नहीं होगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, लॉटरी फुली टैक्सेबल। रेंट, सबलेटिंग, सबलेट करके, सबलेटिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं, यहाँ पे फ्लैट था। सबलेटिंग ऑफ फ्लैट, रेंट कितना मिल रहा था? रेंट कितना मिला था? 12,000, उससे डिडक्ट होगा जितना रेंट पे करना पड़ा,
और रेंट कलेक्शन के लिए जो अमाउंट पे करना पड़ा कलेक्शन के लिए, दोनों मिला के इतना था, तो टैक्सेबल कितना होगा? इतना। ठीक है, तो तुम्हारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टोटल है, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना होगा? ये तीनों, सॉरी, इधर 5 फिगर्स, इधर 3 फिगर्स, 3 नहीं, 2 फिगर्स, टोटल 7 फिगर्स मिला के 79,600 अदर सोर्स का इनकम है। ठीक है, अंडरस्टूड? और कुछ है? और कुछ है? Mention some of the income which are taxable in under the income from other sources. कुछ इनकम मेंशन करो, कुछ इनकम मेंशन करो जो टैक्सेबल होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस हेड में टैक्सेबल होते हैं कुछ इनकम, बोलो। बहुत सारा इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होते हैं बहुत सारा इनकम। इधर लिस्ट है, डिविडेंड है, लॉटरी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी की नहीं, रेंट फ्रॉम प्लांट मशीनरी, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और बहुत सारा डायरेक्टर फीस है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक है, एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इन इंडिया तो एग्जाम्प्ट है। डायरेक्टर कमीशन है, इंश्योरेंस कमीशन, फैमिली पेंशन भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, ये भी है। अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब, किरण बोलो, किरण तो क्लास तुमने किए थे। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब क्या? इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब क्या? যে দেখোনি রেকর্ডেড ক্লাস দেওয়া রয়েছে, দেখে নেবে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সের। আজকে শুধু প্রবলেমটা করালাম, যে প্রবলেমটা দেওয়া রয়েছে, এর আগে কিন্তু এগুলো ডিসকাস করে দিয়েছি। ঠিক আছে, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, इसका मतलब है सपोज तुम्हारा बैंक अकाउंट में किसी ने 15 लाख रुपीज जमा करवा दिया। ठीक है, तुम्हारा बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपीज जमा हो गया है, किसी ने किया होगा सपोज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि ये पैसा कहाँ से आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ये पैसा कहाँ से आया है, तो तुम्हें वो जो पैसा है उसे इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स माना जाएगा। ठीक है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि तुमने तुम्हारे नाम पर एक लैंड, तुम्हारे नाम पर एक लैंड रजिस्टर्ड है जिसका वैल्यू है
10 करोड़, 10 करोड़, और तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो इतना पैसा कहाँ से आया है जिसके थ्रू तुम ये एसेट खरीदे हो, ठीक है, लैंड खरीदे हो, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा लैंड का वैल्यू है 10 करोड़, इतना पैसा कहाँ से आया है तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो इसे माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, इसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। ये कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में, और तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 10 करोड़ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है देख लो। अच्छा, you have received a sum of 40,000 from your employer as gift. Is it taxable? एम्प्लॉयर से तुम्हें 40,000, you received a sum of rupees 40,000 from your employer as gift. Is it taxable? तुम्हें 40,000 मिला है एम्प्लॉयर से एज ए गिफ्ट, क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है? बोलो, क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है? एम्प्लॉयर से कुछ मिलता है तो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? अगर कैश गिफ्ट 5,000 से ज्यादा मिलेगा तो कहाँ टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी में, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। What will be the answer if the above sum is gifted by father? अगर फादर से गिफ्ट मिलता है तो वो क्या टैक्सेबल होगा? अगर 40,000 कैश, 40,000 कैश फादर से मिलता है, क्या वो टैक्सेबल होगा? बोलो, किरण बोलो, किरण, किरण बोलो। किरण बोलो, Yes, sir. टैक्सेबल होगा, फादर से मिलता है। अच्छा, साउंड कुछ है ना, यहाँ से सुनाई दे रहा है क्या? इधर से कुछ साउंड सुनाई दे रहा है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। हाँ बोलो, टैक्सेबल होगा? नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा फादर से 40,000 अगर कैश गिफ्ट मिलता है तो। क्योंकि क्योंकि इधर लिखा है देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। अगर गिफ्ट मिलता है कैश में, कैश में लिखा है, कहाँ लिखा है कैश में? कैश गिफ्ट मिलता है या फिर एफडी मिलता है, मतलब
किसी ने तुम्हारे नाम पर एफडी करवाया है, एनएससी, एनएससी मिलता है। अगर वो एफडी, अगर वो कैश गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, 50,000 से ज्यादा है, तुम्हें जो मिला है वो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री में मिला है, मतलब गिफ्ट ही मिला है, फ्री में तो मिलेगा। होल ऑफ द एग्रीगेट सम, होल ऑफ द एग्रीगेट सम टैक्सेबल होगा। अगर 50,000 से ज्यादा है तो कैश गिफ्ट या फिर एफडी गिफ्ट, एनएससी गिफ्ट 50,000 से अगर ज्यादा है तो होल ऑफ द एग्रीगेट जितना मिला है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये 40,000, 40,000 क्या आ, ज्यादा है 50 से? नहीं है ना, नहीं है ना, तो टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे और भी लिखा है देखो, अगर वो 50,000 से ज्यादा होता तो, अगर वो 50,000 से ज्यादा होता तो भी अगर वो रिलेटिव से मिलता है, अगर वो रिलेटिव से मिलता है, ब्रदर से मिलता है, सिस्टर से मिलता है, स्पाउस से मिलता है, ठीक है, और पेरेंट से मिलता है, पेरेंट्स कहाँ है, पेरेंट लिखा है, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट तो लिखा नहीं है, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस से मिलता है, ब्रदर से मिलता है, सिस्टर से मिलता है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ पाउस, ब्रदर और सिस्टर ऑफ पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स से मिलता है, ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पे तो पेरेंट नहीं लिखा है, तो अगर पेरेंट्स से मिलेगा, पेरेंट से मिलेगा 50,000 से ज़्यादा तो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे 50,000 नहीं है ना, इसीलिए टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 50,000 से ज़्यादा होता वो गिफ्ट तो पूरा टैक्सेबल हो जाता, टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, family pension received by family member of a deceased employee is fully exempt। फैमिली पेंशन जो एक फैमिली मेंबर को मिलता है एम्प्लॉई मरने के बाद, एम्प्लॉई मरने के बाद जो फैमिली पेंशन एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई का जो डिसीज मेंबर है, एम्प्लॉई का जो फैमिली मेंबर है उसे मिलता है, क्या वो फुली एग्जाम्प्ट है? यस सर, नो। अगर फुली एग्जाम्प्ट नहीं है तो कितना एग्जाम्प्ट है? बोलो, कितना एग्जाम्प्ट है? फैमिली पेंशन जो फैमिली मेंबर को मिलता है एम्प्लॉय मरने के बाद, क्या वो पूरा टैक्सेबल है? क्या ये, क्या वो पूरा एग्जाम्प्ट है? अगर पूरा नहीं है तो कितना है? बोलो बोलो, किरण बोलो, किरण पढ़ाई नहीं किए क्या? नहीं सर, ये वाला रिवीजन नहीं की थी, वो क्लास प्रीवियस चैप्टर कर रही थी। डिडक्शन कितना मिलेगा? देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन से कितना मिलेगा डिडक्शन? 15,000 और 33.33% ऑफ सच इनकम, मतलब 15,000 और 33.33% ऑफ फैमिली पेंशन, विच एवर इज लेस। सपोज तुम्हारा फैमिली पेंशन है 40,000, 40,000 फैमिली पेंशन, 40,000 नहीं, सपोज एक 1 लाख है फैमिली पेंशन, पूरा साल में मिला के जो फैमिली पेंशन रिसीव किए हो तुम, वो है 1 लाख। तो इससे कितना छूट मिलेगा, कितना एग्जाम्शन मिलेगा?
15,000 है, 2.2 में है 3.33%, मतलब जो कम फैमिली पेंशन मिला है उसी का 3.33 करोगे तो 3.33 करोगे तो कितना होगा? 33333। तो दोनों में से लोअर कौन सा है? 15,000 लोअर है ना, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 15,000। तो टैक्सेबल कितना होगा? इतना। सो फैमिली पेंशन से मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? फैमिली पेंशन से मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है 15,000, मैक्सिमम मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दोनों में से लोअर वही डिडक्शन मिलेगा ना। सुब्रतो बोलो, सुब्रतो फैमिली पेंशन बोलते কি বোঝো? সুব্রত বলো, ফ্যামিলি পেনশন বলতে কি বোঝো? সুব্রত, সুব্রত কি ঘুমিয়ে গেছো নাকি? বলো, কেটে যাবে, আবার জয়েন করতে হবে। আচ্ছা, তারপরে একটা এমসিকিউ রয়েছে, দেখো। ইউ হ্যাভ রিচ। अच्छा, यू हैव रिसीव ए सम ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें से पैसा मिला है कितना? 2 लाख। स्टेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड ऑन सच इनकम। কত ট্যাক্স দিতে হবে তো ক্যালকুলেট করতে হবে, এটা কিছুই করার নেই। টোটাল टैक्सेबल কোথায় হবে? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन बनेगा करोड़पति से पैसा मिला है, तो टैक्सेबल कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল बोले। যে আপনি যে সেভিংস অ্যাকাউন্টের একটা এক্সামটেড সেকশন বললেন ওটা 80 কি হবে সেকশনটা? 80 টিটিএ, 80 টিটিএ ওখানে ডিটেল সেকশনে যাবে যখন ডিডাকশন ফ্রম গ্রস টোটাল ইনকাম পড়বে। ডিডাকশন ফ্রম গ্রস টোটাল ইনকামে 80 টিটিএ রয়েছে, ঠিক আছে। पैन कार्ड चैप्टर हो गया है ना? पैन कार्ड चैप्टर, पैन कार्ड चैप्टर जो था वो छोटा चैप्टर वो हो गया है ना? अच्छा, देख लो, कुछ याद आ रहा है? पैन कार्ड बोल के एक चैप्टर है।
ये चैप्टर की हो ना, देखो तो पैन कार्ड कब लेना पड़ता है, पैन कार्ड के लिए कब अप्लाई करना पड़ता है, किसे पैन कार्ड लेना चाहिए, किसे पैन कार्ड लेना चाहिए, किसे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, पैन कार्ड किसे लेना चाहिए। हु शुड अप्लाई फॉर प्लान, हु शुड अप्लाई फॉर पैन, हु शुड अप्लाई फॉर पैन। किसे अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज जिसे रिटर्न सबमिट करना चाहिए, द पर्सन हु शुड सबमिट रिटर्न, जिसे रिटर्न सबमिट करना चाहिए, हु शुड सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न। सबमिट और फाइल, हु शुड फाइल ऐसे लिख सकते हो, हु शुड सबमिट और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए उसे लेना चाहिए 10 नंबर। और क्या है, द पर्सन द पर्सन द persons who enter into who enter into who enter into specified financial transaction, कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज है, कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज है जिसमें तुम एंटर करोगे, अगर तुम एंटर करोगे मतलब इन्वॉल्व कर रहे हो खुद को, तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज हु शुड सबमिट, द पर्सन हु शुड सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न। सेकेंड पॉइंट, जो पर्सन कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में, स्पेसिफाइड कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है, स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है, उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 किसे लेना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 voluntarily anyone can obtain, voluntarily anyone can
obtain PAN number, PAN card. Anyone can obtain PAN voluntarily. अच्छा, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है, वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसे अगर इंटर करोगे, जिसमें अगर इन्वॉल्व होगे तो पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा है? स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या क्या लिखा है देखो, सेल परचेज ऑफ व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल खरीदते हो या फिर सेल करते हो, कौन सा? टू व्हीलर नहीं, टू व्हीलर छोड़ के 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 12 व्हीलर, ठीक है? तो पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट ओपन करते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, ये कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है, ठीक है? रेस्टोरेंट बिल पे करते हो 50,000 से ज़्यादा, और अच्छा, फॉरेन ट्रैवल के लिए फॉरेन करेंसी खरीदते हो, फॉरेन में घूमोगे, फॉरेन जाकर, तो फॉरेन करेंसी खरीदना पड़ेगा ना, डॉलर या फिर येन या फिर पाउंड। अगर अ, अगर उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, जो पेमेंट 50,000 से ज़्यादा है, तो पैन नंबर देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड का जो यूनिट है, वो यूनिट तुम खरीदते हो, वो 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो यूनिट खरीद रहे हो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पैन कार्ड लेना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा जिससे खरीद रहे हो, जिस कंपनी से। अच्छा, अच्छा, पैन कार्ड कौन इशू करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करेगा, करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर डिवेंचर खरीदते हो, किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदते हो 50,000 से ज़्यादा, या फिर बॉन्ड खरीदते हो, कैश डिपॉजिट करते हो, ठीक है, इन ए डे 50,000 से ज़्यादा, इन ए डे 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, बैंक में जाकर अगर तुम 50,000 से ज़्यादा, अगर तुम 50,000 से ज़्यादा, अगर 50,000 से ज़्यादा जमा करवाओगे तो देना पड़ेगा। अच्छा, टाइम डिपॉजिट करते हो, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट करते हो, टाइम डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी, एफडी, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, 50,000 से ज़्यादा टर्म डिपॉजिट करते हो तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। या फिर पूरा साल, होल ईयर, पूरा साल में मिला के, पूरा साल में मिला के 5 लाख ज़्यादा हो रहा है, इन तुम जो फिक्स डिपॉजिट करवाए हो वो 50,000 से तो कम है,
तो 50,000 से तो कम है। अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो इन ए सिंगल एफडी अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो देना पड़ेगा। अगर सिंगल एफडी 50,000 से कम है लेकिन पूरा साल में मिला के थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा जो टोटल एफडी हो रहा है वो 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, वो 5 लाख से ज्यादा हो रहा है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो या फिर बेचते हो वो 10,000 से ज्यादा, सॉरी 10 लाख से ज्यादा है तो देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज परचेज के लिए, सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो। सिक्योरिटीज कौन सा सिक्योरिटीज? शेयर छोड़ के और अलग सिक्योरिटीज मतलब डिवेंचर हो सकता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो। कितने रुपए का? 1 लाख से ज्यादा तो देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है परचेज करते हो या फिर सेल करते हो शेयर। कौन सा कंपनी का? अनलिस्टेड कंपनी का शेयर, मतलब अनलिस्टेड शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो और जिसका वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है लेकिन ए पर्सन अच्छा, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सा है? सी योर बुक, सी योर बुक, बुक में लिखा है कौन सा? बहुत सारा है, अभी देख लिया। योर बुक, ए पर्सन हु डोंट हैव, हु डजंट हैव, हु डजंट हैव हु डजंट हैव पैन, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है बट ही एंटर्स इनटू, लेकिन वो एंटर कर रहा है, एंटर्स इनटू इन्वॉल्व हो रहा है, एंटर्स इनटू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहाँ पर एंटर हो रहा है? स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। क्या करना पड़ेगा उसे? क्या करना पड़ेगा उसे? फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जिसके पास पैन नहीं है फिर भी वो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, उसे क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू मेक ए डिक्लेरेशन, उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर, बोलो 60 में, मतलब फॉर्म नंबर 60 फिलअप करके जमा करवाना होगा जब तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो, एंटर कर रहे हो। फॉर्म नंबर 60 देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है, देखो 60 लिखा है, एनी पर्सन हु डज नॉट हैव पैन एंटर्स इनटू ट्रांजेक्शन अबव ट्रांजेक्शन, वही लिखा है, फॉर्म नंबर 60 देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ड्रॉबोर्ड जो था ये काम नहीं कर रहा है। ड्रॉबोर्ड, ड्रॉबोर्ड में ही लिख सकता हूँ। अच्छा, पेनल्टी कितना है? पेनल्टी पैन अप्लाई ना करने के लिए, पैन कार्ड के लिए तुम्हें पैन कार्ड लेना चाहिए फिर भी तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो तो पेनल्टी कितना है? व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉट अप्लाइंग पैन, फॉर नॉट अप्लाइंग फॉर पैन?
पेनल्टी है 10,000 रुपीज। अच्छा, जिसके पास दो पेन है, किसी के पास दो पेन कार्ड रॉन्गली हो सकता है। सपोज तुम्हारे पास एक पेन कार्ड था, वो खो गया था, अ, तुमने फिर और एक पेन कार्ड बनवाए। बाद में जो पेन कार्ड तुम सोचे थे कि वो खो गया है, बाद में वो तुम्हें मिला। तुम्हारे पास कितना पेन कार्ड हो गया है? दो हो गया है ना। तो एक क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। एक सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो पेनल्टी भी है 10,000। वही पेनल्टी है 10,000। अगर तुम्हारे पास दो पैन कार्ड है, दो पैन कार्ड लेके घूम रहे हो, कभी ये पैन कार्ड दे रहे हो, कभी वो पैन कार्ड, तो पेनल्टी है 10,000। क्योंकि एक पैन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। पैन कार्ड के लिए अप्लाई कहाँ करोगे? NSDL लिखा है ऑनलाइन, UTI TCL। NSDL में जाके, NSDL वेबसाइट है, NSDL का जो वेबसाइट है उसमें जाके, या फिर UTI TSL में जाके। अच्छा, क्या कार कार पैन कार्ड नहीं बोले? सुब्रत, प्रतिमा, किरण, कार कार पैन कार्ड नहीं? मेरे पास नहीं है सर। अच्छा, नहीं है। NSDL में और UTI TSL में, इस वेबसाइट पर जाके तुम फॉर्म सबमिट करो, प्रोसेसिंग फी पे करो, फिलअप करके सबमिट करके प्रोसेसिंग फी पे कर दो, तो पैन স্যার कार्ड। অফলাইনই বেটার অনলাইনের থেকে, কারণ আমি করেছিলাম, আমারটা হয়নি, অ্যামাউন্টটাও অনেক বেশি কাটে কিন্তু হয়নি। তুমি পাঠিয়েছিলে কি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা? শুধু ফিল আপ করলে হবে না, তোমাকে অনলাইনে ওইটা আবার পাঠাতে হবে। পাঠিয়েছিলে? পাঠাতে হবে। আমি অনলাইনে করেছিলাম প্রথমে, দিয়ে ওটাই করেছি। হ্যাঁ, ওতে অ্যামাউন্টটাও বেশি নেয়, ওর থেকে অফলাইন সামনেই হয়, ওতে বরং মানে এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসে ওটা অ্যাপ্লাই করলে। আচ্ছা, প্যান কার্ড তোমার অ্যাড্রেসে চলে যাবে। প্যান উইল বি কি सेंड टू गिवन एड्रेस। जो एड्रेस तुम एप्लीकेशन फॉर्म में दोगे, उसी एड्रेस में भेजा जाएगा। और ऑफलाइन में तुम्हें पैन सेंटर में जाना पड़ेगा। कुछ डेजिग्नेटेड पैन सेंटर है, कुछ ऑथोराइज पैन सेंटर है, वहाँ पे जाकर फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा, तो पैन कार्ड तुम्हारा एड्रेस में आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, पैन कार्ड के लिए फॉर्म क्या है? 49A है। पैन कार्ड के लिए फॉर्म है 49A है। अच्छा, उसके बाद कितना फीस देना पड़ेगा? कितना फीस देना पड़ेगा? 110 देना पड़ेगा, 110 प्रोसेसिंग फी, या फिर पैन कार्ड बनाने के लिए 110। यहाँ पे कितना लिखा है देखो तो। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है, पैन कार्ड का फॉर्म है 49A। अच्छा, फीस कितना लिखा है देखो। फीस फीस कितना लिखा है? 110 लिखा है। टोटल टोटल 110 लिखा है। और 120, 1020 किसके लिए है? अगर तुम्हारा एड्रेस, तुम जो एड्रेस वहाँ पे डाले हो, वो एड्रेस अगर इंडियन है, इंडियन एड्रेस है, इंडियन एड्रेस मतलब इंडिया का किसी एड्रेस है, तो खड़गपुर का एड्रेस इंडियन एड्रेस है, मिदनापुर का एड्रेस इंडियन एड्रेस है। इंडियन एड्रेस के लिए 110 रुपीज देना पड़ेगा, 110।
अगर फॉरेन एड्रेस डाल रहे हो, अगर फॉरेन एड्रेस डाल रहे हो तो उस एड्रेस में भेजना पड़ेगा, तो टोटल देना पड़ेगा 1020 देना पड़ेगा टोटल। और कुछ और कुछ और कुछ अच्छा, स्ट्रक्चर पेन नंबर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, 10 डिजिट पेन का जो टोटल नंबर है वो 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें अल्फाबेट भी रहेगा, ABCD EFG A to Z, अल्फा। न्यूमेरिक मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6, अल्फा न्यूमेरिक नंबर 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। तो फर्स्ट थ्री लेटर देखो, फर्स्ट थ्री लेटर जो रहेगा, अच्छा डेट ऑफ बर्थ कंपनी इंडिविजुअल के लिए तो डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है, लेकिन कंपनी का जो पैन कार्ड होगा उसमें क्या रहेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहेगा क्या, डेट ऑफ क्या रहेगा, इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहेगा। फार्म का जो पैन कार्ड होगा उसमें क्या रहेगा, उसमें डेट ऑफ फॉर्मेशन रहेगा, फॉर्मेशन पार्टनरशिप फार्म कब कब फॉर्म किया गया है, कब बनाया गया है, ठीक है। और इंडिविजुअल के लिए फादर नेम रहेगा। और अच्छा 10 डिजिट जो अल्फा न्यूमेरिक लेटर है उसमें से फर्स्ट थ्री लेटर अल्फाबेट में से एनी अल्फाबेट, फर्स्ट थ्री लेटर जो होगा वो एनी थ्री अल्फाबेट। फोर्थ लेटर जो होगा, फोर्थ लेटर क्या होगा, फोर्थ लेटर होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, बी कंपनी के लिए, सी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए, ई फार्म के लिए, ए गवर्नमेंट के लिए, जी HF के लिए, एच लोकल अथॉरिटी के लिए, एल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए, जे इंडिविजुअल के लिए, पी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, अच्छा ट्रस्ट के लिए है टी। ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ये क्या है, ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट है तो टी, सिर्फ एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, अगर ट्रस्ट है तो टी। फोर्थ लेटर, फोर्थ लेटर अच्छा फिफ्थ लेटर क्या हुआ, इंडिविजुअल के लिए क्या होगा और अदर्स के लिए क्या होगा। इंडिविजुअल के लिए फिफ्थ लेटर जो होगा वो इंडिविजुअल का सरनेम, उसी का सरनेम का फर्स्ट लेटर। फिफ्थ लेटर 10 लेटर में से 10 अल्फा न्यूमेरिक, इसमें से फिफ्थ लेटर जो होगा वो इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, इंडिविजुअल का जो सरनेम है उसी का फर्स्ट लेटर। सपोज किसी का नाम है अच्छा किसी का नाम है अ, दिनेश गुप्ता, तो दिनेश गुप्ता के लिए फिफ्थ लेटर क्या होगा, उसका जो पैन कार्ड होगा फिफ्थ लेटर होगा गुप्ता, गुप्ता जी, जी इज द फिफ्थ लेटर। देन फिफ्थ लेटर के बाद रिमेनिंग 6 7 8 6 7 8 9 6 7 8 9 जो 4 लेटर है 6 7 8 9, वो क्या होगा, वो एनी नंबर ठीक है, एनी नंबर 6 7 8 9 एनी नंबर। और जो लास्ट
लेटर होगा, लास्ट डिजिट बोल सकते हो या फिर लेटर, जो 10th लेटर वो एक अल्फाबेट होगा, वो एक अल्फाबेट वो एक अल्फाबेट होगा। अच्छा, इंडिविजुअल के लिए सिग्नेचर रहेगा, इंडिविजुअल के लिए फोटो रहेगा, कंपनी के लिए सिग्नेचर रहेगा क्या? नहीं। कंपनी के लिए फोटो रहेगा क्या? बिल्डिंग का फोटो? नहीं। कंपनी के लिए फोटो भी नहीं रहेगा, सिग्नेचर भी नहीं रहेगा। फार्म के लिए फोटो भी नहीं रहेगा और सिग्नेचर भी नहीं रहेगा। सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही सिग्नेचर रहेगा, फोटो रहेगा। डन डन। फुल फॉर्म ऑफ पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। हु शुड अप्लाई तो क्यों, तो छोड़ो। कोटिंग ऑफ पैन कंपलसरी, कब कब पैन मेंशन करना कंपलसरी है? क्यों? जो जहाँ पर जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तुम इन्वॉल्व हो रहे वहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है मेंशन किया गया है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो पैन नंबर देना पड़ेगा। पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। कोटिंग, कोटिंग मतलब लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। कोटिंग कंपल्सरी, वो जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन था उसमें। अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी? पेनल्टी तो 10,000 है ना एप्लीकेशन करने लिए, अगर एप्लीकेशन नहीं करते हो तो। व्हाट इफ द पर्सन डज नॉट हैव पैन, एंटर्स इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है फिर भी तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो। एक पर्सन के पास पैन कार्ड नहीं है, पेन फिर भी फाइनेंशियल स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। रिक्विजिट फॉर्म फॉर अप्लाइंग पैन 49A। वेबसाइट का नाम बोलो, वेबसाइट जहाँ से तुम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। NSDL और बोलो UTI TSL। स्टेट द पेन नंबर। अच्छा, अमाउंट ऑफ फीस फॉर पेन एप्लीकेशन 110 110। अच्छा, फॉरेन कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए तो 120 1020 फॉरेन कम्युनिकेशन एड्रेस अगर डालोगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना पड़ेगा? आधार कार्ड और कुछ नहीं। हाउ मेनी डिजिट्स? 10 तो है, 10 डिजिट। इफ यू allotted पैन, व्हाट विल बी फिफ्थ लेटर ऑफ योर पैन? तुम्हारा पैन का फिफ्थ लेटर क्या होगा? बोलो। फिफ्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, फिफ्थ लेटर। तुम्हारा पैन फिफ्थ लेटर होगा फर्स्ट लेटर ऑफ सरनेम, फर्स्ट लेटर ऑफ सरनेम। फोर्थ लेटर, कंपनी के लिए पैन कार्ड का फोर्थ लेटर क्या होगा? बोलो बोलो। फोर्थ C. लेटर सी। फिफ्थ लेटर ऑफ पैन इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए फिफ्थ लेटर क्या होगा? पैन पैन नंबर जो होगा उसमें फिफ्थ लेटर क्या होगा कंपनी के लिए? कंपनी के लिए, कंपनी का तो कोई सरनेम होता है क्या? कंपनी का कोई सरनेम होता है क्या? नहीं होता है। No, sir. तो फास्ट फास्ट वर्ड जो रहेगा, फास्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, सपोज रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस के लिए आर होगा,
जियो लिमिटेड, जियो के लिए जे होगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया के लिए भी होगा 5th लेटर। उसी का तो कुछ सरनेम नहीं है ना, सरनेम बोल के। अच्छा, हुईज डिपार्टमेंट इशूज पैन कार्ड? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसी के साथ पैन कार्ड चैप्टर भी खत्म हो गया है, इसी के साथ पैन कार्ड चैप्टर भी खत्म हो गया है। डन। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ बोलना है तो बोलो। सर एक डाउट था मेरे को, बोलो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में था वो पेज नंबर 94 में, वो जो असाइनमेंट 2 है सर, उसमें हम लोग जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालेंगे हम लोग, तो उसमें ना, हाँ एक सेकेंड, हम लोग जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालेंगे वो कितना होगा वहाँ पे? वो 1,50,000 लेके आप करवाए थे, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा 1,50,000 कैसे आया। एक्चुअल वैल्यू तो दिया हुआ है सर, लेकिन वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू तो मेरे को नहीं दिख रहा है, पेज नंबर 94। अनुष्का शेट्टी है क्या? अनुष्का शेट्टी है क्या? क्या लिखा है प्रॉब्लम ने? एसएसवी का नाम बोलो। सर मिसेस अवंतिका करके है सर, यहीं पे ऊपर सेकंड नंबर। बोलो, कौन सा समझ में नहीं आ रहा? ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ हाँ सर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। इसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इसे हाँ मल्टीप्लाई। वो तो करेंगे सर, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन तो निकालते हैं ना हायर ऑफ फेयर एक्चुअल वैल्यू, और जो फेयर मार्केट वैल्यू का हायर लेते हैं ना हम लोग तो। नहीं 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 नहीं, ये तब लेना पड़ेगा अगर वो एसेट एक्वायर किया जाता है, अगर वो एसेट एक्वायर किया जाता है 1 अप्रैल 2001 से पहले। यहाँ पे जो बिल्डिंग एक्वायर अच्छा, किया गया है ये तो 1 अप्रैल 2001 के बाद है। वो 2001 के बाद का है। हाँ, तो ये इसमें ऐसा हाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर इसीलिए यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया है। हाँ हाँ हाँ, अगर वो परचेज किया ओके, जाता 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो वो ठीक रूल है ठीक अप्लाई है, होगा। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, एंड कर